class 4, chapter 4, adaptation in animals. This is part 3 of this chapter. If you haven't seen part 1 and part 2 of this chapter, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon to get notified. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Today, we are going to start our discussion from the topic adaptation to food habits. So, on the basis of food habits, animals are being categorized into three groups. First one is herbivores. You can see the example as horse. Next as carnivores, example tiger. Next omnivores, example human beings. Let us find out about these three categories in much more details. So first one is herbivores. So plant eaters or herbivores have sharp cutting front teeth and strong grinding teeth at the back. तो herbivores के क्या फीचर्स होते हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज उनको प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है और उनके फ्रंट के टीथ बहुत शार्प होते हैं टू कट द फूड एंड उनके जो बैक के टीथ होते हैं दोज आर द ग्राइंडिंग टीथ. Those are very much strong. Now, many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. So, बहुत सारे ऐसे herbivores होते हैं जिनकी जो hooves होते हैं वो बहुत ज़्यादा hard होते हैं. ऐसा क्यों? Because उनको बहुत सर्च करना पड़ता है अपने फूड के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है. दैट इज़ वाई दे हैव हार्ड hooves. Now, what are the examples of herbivores? Here are the examples. Cow, goat, giraffes are herbivores. I have given two pictures, those of cow and giraffe. ठीक है? Next is carnivores. अब carnivores कौन होते हैं? The flesh eating animals are called carnivores. जो flesh eating animals होते हैं उन्हें कहते हैं carnivores. उनके क्या स्पेशल फीचर्स हैं? They have sharp teeth or beaks and claws to catch other animals and to tear flesh. तो वो जो होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं, या फिर अगर बर्ड्स का कहें तो उनके शार्प बीक्स होते हैं एंड क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं शार्प, जिसकी मदद से वो दूसरे एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और उनके फ्लैश को टेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच? लाइक बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक vultures और ईगल्स हैव शार्प eyes to spot their prey. अब जो बर्ड्स होते हैं उनका एक और स्पेशल फीचर्स होता है. जैसे कि बर्ड्स वल्चर और ईगल्स हैं, उनके पास शार्प आईज होते हैं जिससे कि वो जो अपने शिकार को बहुत जल्दी स्पॉट कर सकते हैं, बहुत दूर से स्पॉट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स? दोज आर ईगल, लायन, टाइगर्स आर carnivores. Here I have mentioned images of tiger and lion. ठीक है? So these are the images of tiger and lion are the examples of carnivores. Now moving on to omnivores. Omnivores क्या है? Omnivores eat. It should be eat, okay, not cat. E-A-T, eat. Omnivores eat both प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो क्या है? वो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स? बियर, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, कॉकरोचेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ omnivores. Here you can see I have given the picture of bear and human beings. ठीक है? Now, apart from those three main categories
of animals, those are based on their food habits. There are two more that you have to know. What are those? Scavengers and parasites. Let us find out what are scavengers first. So some animals like vulture, hawk or hyena eat flesh of dead animals. These are called scavengers. अब जैसे कि लायन, टाइगर ये क्या करते हैं, ये एक जिंदा एनिमल को पहले शिकार करते हैं, उसके बाद उनको खाते हैं. Now there are few flesh eating animals like vulture और hawk और hyena. वो क्या करते हैं, वो dead animals के flesh को खाते हैं. जो animals already मर चुके हैं उनके flesh को खाते हैं. तो वैसे animals को क्या कहते हैं, scavengers. तो what are the example? Vulture, hawk, hyena, these are the examples of scavengers. ठीक है. Here you can see image of vulture. Now next we are going to discuss about parasites. Now some animals depend on other living animals for their food. They are called parasites. अब कुछ animals क्या होते हैं, वो depend करते हैं दूसरे living organisms पे उनके food के लिए. ठीक है, वैसे animals को कहते हैं parasites. जैसे कि they live within or on the bodies of other animals. तो वो या तो फिर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं या फिर बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से खुद का फूड या खुद के लिविंग के लिए जो उनको खाना चाहिए वो वहाँ से उनको मिल जाता है. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पैरासाइट्स? एग्जाम्पल्स आर bugs, mosquitoes and leeches are examples of some parasites. Here you can see the image of मस्कीटो. तो मस्कीटो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी पे बैठ के हमारा ब्लड सक करते हैं. दैट गिव्स देम देयर लिविंग. तो हमारे बॉडी पे वो डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बॉडी के ब्लड पे वो डिपेंड करते हैं. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, सो वी हैव लर्न ऑलरेडी कि जो एडेप्टेशन क्या है और एडेप्टेशन किन किन वजह से एनिमल्स करते हैं. सो द फर्स्ट टू वर एडेप्टेशन फॉर लिविंग हैबिटेट, उनके हैबिटेट की वजह से, देन उनके फूड हैबिट्स की वजह से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर प्रोटेक्शन. वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी एडेप्टेशन करते हैं. ठीक है, हाउ animals protect themselves from their enemies in different ways. different ways की मदद से वो खुद को animals से protect करते हैं. जैसे some animals like grasshopper, chameleon, garden lizard and snake develop special adaptation called camouflage. एक स्पेशल एडेप्टेशन वो फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं केमोफ्लैग. अब केमोफ्लैग क्या होता है और वो कैसे हेल्प करते हैं इन ग्रास हॉपर, केमिलियन, गार्डन लिजर्ड्स को टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ? लेट्स फाइंड आउट. Camouflage helps the animals to hide from its predators and prey. These animals change their skin color to blend with their surrounding. तो camouflaging एक्चुअली क्या होता है? टू चेंज देयर स्किन कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली जब अपना बॉडी कलर या चेंज करते हैं खुद को बचाने के लिए, उसको कहते हैं camouflaging. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो खुद को शिकारी से हाइड कर पाते हैं सराउंडिंग्स में मर्ज होके, क्योंकि वो लोग अपना स्किन कलर सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता कि वो लोग वहाँ पे हैं. ठीक है. नाउ सम एनिमल्स लाइक लियोपार्ड, टाइगर, zebra and giraffe have spots and stripes on their body which help them to merge with their surrounding. This protect them from their predators and preys both. तो जैसे कि लियोपार्ड, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, इन सब के बॉडीज में क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं या फिर स्ट्राइप्स होते हैं जो कि सराउंडिंग्स के साथ मर्ज कर जाते हैं, और इसकी मदद से वो लोग प्रेडेटर और प्रे दोनों से ही खुद को बचा पाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज वन वे, दैट इज camouflaging. ठीक है, जिसमें
बॉडी के कलर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया जाता है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द नेक्स्ट वे. Some animals move fast enough to escape from their enemies. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ सकते हैं जिससे कि वो अपने एनिमीज से बच सकते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक डियर, ऑस्ट्रिच, एम्यू, स्नेक, दे रन वेरी फास्ट. वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं एंड खुद को बचा सकते हैं शिकार से. ठीक है. नेक्स्ट शिकार होने से नेक्स्ट वे इज एनिमल्स लाइक क्रैब्स, टॉर्टॉइस एंड स्नेल हैव शेल्स एंड पोर्क्यूपाइन हैव स्पाइन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. अब एनिमल्स जैसे कि टॉर्टॉइस, स्नेल्स, इनके पास क्या होता है, एक शेल होता है जो कि हार्ड कवरिंग होती है. तो जब भी एनिमीज आती हैं वो क्या करते हैं, वो उस शेल के अंदर घुस जाते हैं जिसकी मदद से वो खुद को बचा लेते हैं. वैसे ही पोर्क्यूपाइन एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, जो उनको हेल्प करता है अपने आप को एनिमीज से बचाने में. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द अनदर वे of animals to protect themselves from enemy. That is, some poisonous animals like snake, lizard and scorpion have poisonous venom to kill their enemies. अब कुछ poisonous enemies होते हैं, animals होते हैं, जैसे कि snake ले लीजिए, lizard हो गया, scorpion हो गए. वो क्या होता है, उनके पास poisonous venom होता है. venom means जहर. तो उनके पास एक पॉइजनस जहर होता है जिसकी वजह से वो अपने एनिमीज को मार सकते हैं. तो इन दिस वे दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस मार्क्स द कंक्लूजन or the end of explanation of this chapter, where we got to know what is adaptation and why do animals adopt, what are the main reasons. तो हमने इस चैप्टर के थ्रू ये जान लिया कि adaptation क्या होता है और adaptation क्यों ज़रूरी है in case of animals. Okay, so this is all about today's video. In our next video, we will discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.